Hello, good morning everyone. I'm Dr. Madhulika Singh, hosting this meeting and welcome all of you in today's webinar, which is presented by the Maharshi University of Information Technology. So the topic for the webinar is the job opportunities through the cultivation and processing of the medicinal and aromatic plants. As we all know that during this pandemic we all are suffering from some type of crisis, and so that timely requirement we have chosen this subject. Being university people, somehow subject is irrelevant. Yes, I agree with all of you, but during the post and during and post pandemic time, there are number of challenges in terms of job opportunities for us. As an estimate, every 6 crore Indians out of 60 crore who will go to work are at the risk of losing their jobs before the winters in India. So actually, all businesses are suffering from the lockdown and facing severe challenges to resume there. So in some way, I can say coronavirus may swallow 1 in 10 jobs in India. That out of 10, 1 Indian will be jobless within few coming months. So defeat this situation, Government of India launched various projects. Among them, medicinal plants cultivation is one, which is offered by the Ministry of the Ayush under the National Mission scheme. So during for this support, government is supporting for the cultivation of medicinal plants by the skilled people, educated peoples. Those can support in cultivation, marketing, and managing of the post-harvest services. So at present in India, more than 140 medicinal plants have been prioritized by the government throughout the country, for which they are providing subsidiary and so many other helps in terms of the cultivating them from cultivation to the marketing. So timely requirement is that we should go for the self-employment. Our students should for towards the self-employment. So it is my great pleasure to present our speaker today, who is the eminent scientist from Central Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants, which is located in Lucknow and working under the edge of Council of Scientific and Industrial Research. He is internationally renowned scientist named Dr. Anil Kumar Singh. During his tenure, about 35 years at CMAP, he has been involved in business development and dissemination of medicinal and aromatic plants related services and technologies. He trained lots of farmers, educated persons for the cultivation and maintenance and the marketing of the flora and fauna, and which are related to the medicine formation and aromatic plantation. So he's also associated with the Clean and Green Environmental Society and Fauna Science Foundation, and is involved in creating awareness about environment protection, health, nutrition, and agriculture among the people from various segments of the society. He has published 84 internationally reputed journal publications, and besides his scientific number of farm bulletins, video films, newsletter, etc. on medicinal and aromatic plants. So now this is the time to hear such eminent person and who is with us. I welcome sir you, and my heartiest wishes for you. And we all are see on the behalf of the MUIT people, I am welcoming you again and again, sir. So for the audience, for the participants, there is some information.
that the recorded version of this webinar will be available on their demands. We will provide you on mail, and you just here to love for this session, and questions are welcomed in chat box and after the completion of the talk. So I welcome sir, please. सबसे पहले आप सभी को हमारा नमस्कार। डॉक्टर मधुलिका सिंह ने हमारी जो बात है बहुत आसान कर दी है। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि हम आज विश्व की इस महामारी कोविड के दौरान से गुजर रहे हैं। गंभीर स्थिति है और इस स्थिति में लाखों करोड़ों लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ा है। जैसा डॉक्टर मधुलिका सिंह ने बताया कि बहुत से माइग्रेंट्स जो दूसरे शहरों से अपने गांव की तरफ आ गए हैं, अब उनको रोजी चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट तमाम एफर्ट्स कर रही है अपने लेवल पर, लेकिन औषधि और सघन फसलें भी एक विकल्प है, एक अल्टरनेटिव है उनके सामने, जो कि दूसरे विकल्पों के साथ या अलग से लाखों की संख्या में रोजगार के अवसर ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध करा सकते हैं। मैं सबसे पहले MUI के समस्त स्टाफ मेंबर्स और सहकर्मियों को बधाई देता हूं इस वेबिनार के आयोजन के लिए, और सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। मैं ये प्रेजेंटेशन अपनी एक स्लाइड्स के जरिए करूंगा, और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं जो टॉपिक बताया डॉक्टर मधुलिका सिंह ने, job opportunities are employment opportunities which are available through cultivation and processing of medicinal aromatic plants. ये medicinal aromatic plants की प्रकृति का उपहार है आजीविका के लिए, जो हमारे पालन पोषण के लिए और हमारे लिए हमारे जीवन को सस्टेन करने के लिए इसको मैं एक सेकेंड, इसको मुझे बढ़ाना था। अब ये मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स, ये आज मैं करीब 1 दर्जन मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में संक्षेप में पहले चर्चा करूंगा। और इनका महत्व आप जानते हैं कि इनका महत्व औषधियों में भी है, लोगों में रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं, और उधर जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं इनमें भी थेरेपेटिक वैल्यू होती है, जिनको कि एरोमा थेरेपी की तरह यूज किया जाता है। ये हमारी स्लाइड्स आगे नहीं बढ़ रही मधुलिका जी, पता नहीं क्या बात है, इसको कैसे बढ़ाएंगे? ये दिक्कत आ रही है, अभी तो बढ़ रहा था। प्रॉब्लम स्टॉप शेयर करके मैं फिर से करता हूं, प्लीज बियर विद अस। अभी मैंने लेक्चर के पहले इसको ट्राई किया और ये चल रहा था अच्छी तरीके से, बट व्हाई इट इज नॉट कोऑपरेटिंग।
Yeah, sorry for disturbance. There was some technical flaw. Now ये जितनी भी प्लांट्स हैं ये सभी में मेडिसिनल गुण पाए जाते हैं, लेकिन तब तक हम इनको मेडिसिनल नहीं कहेंगे जब तक कि किसी भी पद्धति में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, चाहे वो आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, यूनानी हो या होम्योपैथी हो। यहाँ तक कि एलोपैथी में भी इनके कुछ जो अंश हैं वो इस्तेमाल किए जाने लगे हैं, और फॉक मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये इनका बहुत बड़ा इतिहास है, और ऐसा कहा जाता है कि आज विश्व की करीब 2/3 जो प्लांट स्पीसीज है, at least 35,000 plants species are estimated to have medicinal value. According to WHO, about 80% of Asian and African population, they are presently dependent on these herbal medicines, and these herbal medicines are gaining property day by day, because in synthetic drugs, in allopathic drugs, there are lots of side effects, you know. So similarly, essential oils which are obtained from aromatic plants, as I have told you earlier, they have got therapeutic value. They are being aromatherapy. Besides this, they are being used in perfumery, cosmetics, fragrance, and flavor. Again, there is a problem, I think. Why? Okay. Now, India has a rich source base of medicinal aromatic plants. भारतवर्ष में करीब 8,000 प्लांट स्पीसीज है जो मेडिसिनल है, और लेकिन अभी भी जो बल्क ऑफ द रॉ मटेरियल है, जो कि 80% ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ हर्बल ड्रग्स आर स्टिल बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट सोर्स। इससे क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट रिजर्व जो है हमारा, जो जंगली अवस्था में पौधे उगते हुए पाए जाते हैं, इनका बेतरतीब कलेक्शन होता है, अनसाइंटिफिक कलेक्शन होता है। हम उसको पौधे को उखाड़ देते हैं, जैसे कि हम गिलोय इकट्ठा करने गए तो पेड़ से ही समाप्त कर देते हैं, न उसकी जड़ रह जाती है, न आगे बढ़ने का उसका कोई जरिया रह जाता है। तो बहुत से पौधे विलुप्त हो गए, यानी those plants have become endangered, and for ensuring their availability, cultivation has been stressed upon. और ये इंस्टीट्यूट जिसमें मैंने काम किया है करीब 35 वर्ष, और वहां पर दूसरे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलप करके इसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। CSIR CMAP और CSIR के दूसरे संस्थान, ICR के दूसरे संस्थान, बहुत सी यूनिवर्सिटीज और जो NGOs। कंजर्वेशन फॉलोड बाय कल्टीवेशन, और उसकी जो प्रोसेसिंग है, इससे न केवल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है, बल्कि लोगों को अतिरिक्त आमदनी के अवसर भी मिलते हैं। ना इनसे क्या क्या हो सकता है, ये देखिए स्लाइड्स में दिखाया गया है। आपको ये स्लाइड्स विजुअल है कि नहीं है, पहले हमें कोई बता दे, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, ओके, प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल थ्रू कल्टीवेशन। तो एक तो ये काम हुआ कि आप इसकी खेती करके जो रॉ मटेरियल है, जड़ी बूटियां हैं, चाहे उसकी जड़ें हैं, पत्तियां हैं, या उसका जो सुगंधित पौधों का तेल है, उसको आप बना सकते हैं। तो ये एक व्यवसाय हो गया। दूसरा, प्राइमरी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज वो सेटअप करना। कृपया बातचीत के लिए अपना बीच का वो माइक जो है उसको साइलेंट करते हैं, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज इज अनदर ऑप्शन which you can do where cultivation is being done. Third option is production and supply of seeds and propagules, nursery, क्योंकि इनकी खेती के लिए उत्तम बीज की नर्सरी की जरूरत होती है। तो व्यवसाय का एक ये भी ऑप्शन है। आगे चल करके लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती होगी तो अच्छी पौध सामग्री की कमी पड़ेगी। कल्टीवेशन के लिए कंपनियां भी आगे आएंगी, अभी थोड़ा स्लो डाउन है, लेकिन कंपनियां संपर्क कर रही हैं, क्योंकि कुछ पौधों की डिमांड अचानक बढ़ रही है। अभी मैं बताऊंगा उनकी डिमांड क्यों बढ़ रही है। तो उसमें कंट्रेक्चुअल कल्टीवेशन की बहुत संभावनाएं हैं, और उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें सरकारी संस्थान जो कि सलाह देंगे, प्राइवेट संस्थान और किसान सभी मिलकर के जो एक स्पेसिफाइड प्लांट है, जो जिसकी डिमांड है, उसकी खेती होगी, निश्चित मूल्य पर उसकी बिक्री हो सकती है।
और एक ऑप्शन है कि आप में से बहुत से लोग ये चाहेंगे कि हम इसमें इसकी ट्रेनिंग लेकर के, जानकारी लेकर के, एक्सपीरियंस लेकर के दूसरों को टेक्निकल गाइडेंस दें, कंसल्टेंसी दें, ट्रेनिंग दें, तो और टेस्टिंग फैसिलिटीज भी बनाएं, क्वालिटी टेस्टिंग करें, एग्री क्लिनिक्स बनाएं, ये भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। और ये जॉब अपॉर्चुनिटी किसी भी एग्रीकल्चरल क्रॉप में जो या दूसरी भी फसलों में हो सकती है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में। इस्टेब्लिशिंग जीएमपी कंप्लायंट प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज, ये भी एक ऑप्शन है आपके सामने। एंड प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स व्हिच आर बेस्ड ऑन मेडिसिनल प्लांट्स एंड एरोमेटिक प्लांट्स। मैं जो आज जिन पौधों पे बात करूंगा उसमें से बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं पीले रंग में, ये मेडिसिनल प्लांट्स है। अश्वगंधा, विदाइनिया सोमनिफेरा, सर्वगंधा, राउल्फिया सर्पेंटिना, ये बोटेनिकल नेम, कालमेघ, एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा, सतावर, एस्पैरागस पैसिमोसस, इसबगोल, प्लांटेगो वेटा, सेना, कैसिया अंगुस्टिफोलिया, एलोए, एलोए बार्बाडेंसिस और एलोए वेरा। जो विद्यार्थी जो फार्मेसी के, बॉटनी के विद्यार्थी हैं, उन्हें बोटेनिकल नाम का अंदाज होगा। और दाहिनी तरफ जो सफेद अक्षरों में मेंथॉल मिंट, पेपरमिंट, लेमन ग्रास, पामारोजा, खस या वेटिवर, तुलसी और जेरेनियम, ये ऐसी फसलें हैं जिनकी आज मांग है। और इनकी मांग इसलिए है कि इन पर आधारित बहुत सी औषधियां बन रही हैं, इन पर आधारित बहुत से सुगंध के उत्पाद बन रहे हैं, और दिनों दिन इनमें 15 से 20% मांग में प्रतिवर्ष इजाफा होता जा रहा है, जो अब आने वाले वर्षों में और भी बढ़ने की उम्मीद है। सबसे पहले हम अश्वगंधा पर आते हैं, बात कर लेते हैं। अश्वगंधा, इसको हम इंडियन जिनसेंग के नाम से जानते हैं। आपने चाइनीज जिनसेंग, कोरियन जिनसेंग, अमेरिकन जिनसेंग, इनका सबका नाम सुना होगा। इंडियन जिनसेंग जो अपना बहुत ही बहुमूल्य पौधा है, अश्वगंधा, जो कि कमजोरी की दवाई में काम आता है। आज इसमें कोरोना की दवाई ढूंढी जा रही है, और कहते हैं कि इस पे संस्थान कार्य कर रहे हैं, यानी कोरोना को मारने की क्षमता इन औषधियों में निहित है। अब इस पे और भी रिसर्च चल रही है। इनकी रूट्स में जो विनोलाइट्स नाम का तत्व होता है, रासायनिक तत्व, और बहुत ही प्राचीन काल से, बल्कि ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन से इम्यूनिटी बूस्टर की तरह, हेल्थ टॉनिक में तमाम तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। इनकी जड़ों का जो बॉक्स में दिखाई गई है, सूखी हुई जड़ें हैं। 1 हेक्टेयर प्लांटेशन से करीब 8 क्विंटल सूखी जड़ें पैदा होती हैं, और अगर एक किसान इसकी खेती करे तो करीब 5 से 6 महीने में करीब 65 से 70 हजार रुपए का लाभ वो कमा सकता है। 1 हेक्टेयर में करीब 30,000 रुपए का खर्च आता है। ये अनुमानित आंकड़े हैं जो प्लेस टू प्लेस, क्लाइमेट टू क्लाइमेट डिफर कर सकते हैं, और जमीन का भी बहुत असर पड़ता है। इसकी खेती अब जहाँ बरसात के बाद सितंबर में इसकी बुआई शुरू होती है, तो आने वाली है। सर्पेंटिना रूट्स एक ऐसा पौधा है जो लुप्त प्राय, इंडेंजर्ड है, बहुत इसका दोहन किया गया। उत्तराखंड के देहरादून के आसपास ये वाइल्ड उगता था, और अचानक इसकी विश्व में मांग हुई। इसकी जड़ों से रेसरपिन एंड रेसरामिन, यानी हाइपोटेंसिव ड्रग, जो ब्लड प्रेशर को कम करने की दवा बनती है। सर्पासेल या अनेक प्रकार की टैबलेट्स इस पे आधारित भी बनती हैं, और करीब बहुत पुराने जमाने से इसका ऐसा पौधा है कि जिसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एलोपैथिक दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। तो इसके कल्टीवेशन की बहुत आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। 2 साल के बाद, अभी मैंने अश्वगंधा बताया, वो 5 महीने के बाद उसकी खुदाई होती है। ये 2 साल के बाद इसकी जड़ें पैदा होती हैं, जो बॉक्स में दिखाई गई है, आपको दिखाई गई है, ये मेरा कर्सर है। और इसमें रूट्स होती हैं 2 साल के बाद, और इसमें 2 साल के हिसाब से इसमें फायदा भी अधिक है। करीब 2.5 लाख के आसपास 50,000 रुपया खर्च होता है। खास बात इसमें यह भी है कि ऑर्चर्ड में, छायादार स्थानों पर भी इसकी खेती की जाती है। काल में बहुत कम समय की फसल, कहते हैं कि एक समाचार था यहाँ के लखनऊ के समाचार पत्रों में कि कोरोना का काल और कालमेघ में है। इस पर बड़ी रिसर्च हो रही है। ये
फेब्रिफ्यूज यानी बुखार को, पुराने से पुराना बुखार को ठीक करता है, शरीर के दर्द को ठीक करता है, कफ में, कोल्ड में, सभी में लाभकारी है और आजकल इसको काढ़ा में मिलाकर पीने की सलाह दी जाती है। एंडोग्राफोलाइड्स आर द मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस प्लांट। अगर 1 हेक्टेयर की क्रॉप आपका इसका अनुमान लगाए तो करीब 3 से 4 टन इसमें सूखी हर्ब होती है। मैंने यहाँ के जो व्यापारी हैं सादतगंज में, रकाबगंज में, इसका बहुत व्यापार करते हैं और इसका ये पंचांग खरीदते हैं। ये जो बॉक्स में दिखाया गया है पौधे के नीचे, जिसमें इसका तना, पत्तियां, जड़ सब कुछ काट करके पंचांग बोलते हैं, सारे हिस्से इसमें डालते हैं और उसका बाद में चूर्ण बनता है। बहुत से आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स, एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स इसकी दवाई बना करके और सप्लाई कर रहे हैं और इसमें करीब 3 महीने में जो एक किसान को या ग्रोवर को करीब 60,000 रुपए का खर्चे निकालने के बाद फायदा हो सकता है। सत्तावर की फसल भी लैक्टोगॉग की तरह यूज होती है। लैक्टोगॉग एक ऐसा टर्म है दूध बढ़ाने के लिए, चाहे वो पशु हो या जहां पर भी मतलब दूध बढ़ाने की आवश्यकता होती है, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इन जड़ों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है। इसमें सैपोनिन्स होते हैं एंड सटावरिन्स, जैसा कि नाम से है, इसके उसी नाम से रखा गया है। सटावरिन्स 1 से 5 ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ये करीब 2 वर्ष की क्रॉप है और इसकी जड़ें करीब 40 से 50 क्विंटल बड़ी पैदावार होती है इसमें और करीब 2.5 लाख रुपए का फायदा होता है 2 वर्ष की फसल, सतावर की फसल। ये सब गोल है। दिस इज आल्सो नोन एज डॉलर अर्नर ऑफ गुजरात एरिया। गुजरात की फसल है या राजस्थान के कुछ जिलों में इसकी खेती होती है, जहां पर मतलब रबी की फसल के रूप में, जहां पर जाड़ों में वर्षा नहीं होती। उत्तर प्रदेश में इसकी संभावनाएं कम है क्योंकि यहाँ पर जाड़ों में कभी कभी बरसात हो जाती है और इसकी जो दानों की क्वालिटी है या जो हस्क है, भूसी है इसबगोल की, वो काली हो जाती है। तो ये पौधा है आपका गुजरात का और ये लैक्सेटिव की तरह काम आता है। आइसक्रीम की इंडस्ट्री में इसका बहुत इस्तेमाल है। इसके बहुत से इस्तेमाल खोज के लाए गए और आज इसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्टेड कमोडिटी है अपने भारत से, इसलिए इसको डॉलर अर्नर भी कहते हैं। इसमें 1 हेक्टेयर में करीब 60,000 का खर्चा होता है और करीब इतना ही लाभ होता है और 12 से 15 क्विंटल सीड्स होते हैं जिसको फिर बाद में भूसी निकाली जाती है उससे। जो उसके हलर या भूसी निकालने का यंत्र गुजरात के कुछ शहरों में लगा हुआ है, बहुत से शहरों में लगा हुआ है, महसाना है या दूसरे जो जिले हैं, और 5 महीने की ये फसल है। ये सनाए भी एक तरीके से लैक्सेटिव है और सेना की पत्ती, आजकल जितने भी पेट को साफ करने के जो औषधियां या फॉर्मुलेशन है उसमें इन पत्तियों के छोड़ का इस्तेमाल किया गया है। उत्तर प्रदेश में इसकी खेती की संभावना कम है, लेकिन ये सूखा वाले इलाकों में, राजस्थान में इसकी खेती की जाती है और या तमिलनाडु में एक वैरायटी सोना, ये सीमैप के द्वारा विकसित वैरायटी है। इसमें भी 1 हेक्टेयर से इसका जो इकोनॉमिक्स यहाँ लिखी हुई है ये करीब 50,000 का नेट प्रॉफिट है और 30,000 खर्चे निकालने के बाद। तो ये सनाए का पौधा है, कैसिया और मेडिसिनल प्लांट्स में अंत में एलोए से सभी लोग परिचित होंगे। एलोए तो इसकी खेती वहां करनी चाहिए जहां पर इसकी प्रोसेसिंग फैसिलिटी हो, एलोए जूस बनाने की, एलोए सैप बनाने की, क्योंकि इसको सुखाया नहीं जा सकता। पत्तियां इसकी मांसल होती है, प्लस इसका जो प्लस होता है ये गूदा, उससे तमाम प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं और इसकी एक बार जब फसल लगा दी जाती है तो कई वर्ष चलती है और एक वर्ष में करीब 50 टन तक इसमें पत्तियां होती हैं जो कि ताजा बेची जाती हैं और 5 से 6 रुपए और कहीं कहीं 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इसकी बिक्री होती है और उसी हिसाब से इसका इकोनॉमिक्स यहाँ दर्शाया गया है। जी बताइए, कुछ बोल रहे हैं आप? ओके, नाउ वी कम टू एरोमेटिक प्लांट्स। मेंथोल मिंट,
आजकल उत्तर प्रदेश में और निकटवर्ती क्षेत्रों में अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि एक मिंट की फ्लेवर, मेंथॉल की फ्लेवर आपको गांव की तरफ आएगी। या तो किसान लोग फसल को काटते हुए मिल जाएंगे या इसका डिस्टिलेशन कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में इसकी खेती बहुतायत में की जा रही है, और जिसको कि आम भाषा में पेपरमिंट भी बोल देते हैं। पुदीने की एक प्रजाति है, और प्रायः आलू के बाद या उसके बाद जो खेत खाली होता है गेहूं के बाद, तो इसकी बेढ़न कर इसकी खेती किसान लोग करते हैं। करीब करीब अपने देश में 2.5 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा एरिया है, और करीब करीब 75 से 80% एरिया अपने उत्तर प्रदेश में। ये एक बड़े गर्व की बात है उत्तर प्रदेश के लिए। 25,000 टन का प्रोडक्शन है, 5 करोड़ मैन डेज प्रति वर्ष इसमें लगे हैं। पूरा मैं बता रहा हूँ पूरे अपने देश का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लिवलीहुड, करीब 5 लाख परिवार तो इससे डायरेक्ट जुड़े हैं, इनडायरेक्ट तो बहुत से। 5 लाख परिवार, जिसके परिवार का जिसमें सदस्य 4 से 5 सदस्य तक होते हैं। इसकी खेती बहुतायत में की जाती है। बहुत से लोग आप में से भी जानते होंगे, और गांव से जो आते हैं, पेपरमिंट का आजकल सीजन चल रहा है, और एक कटाई अगर करी जाए तो 100 से 150 किलोग्राम, 2 कटाइयां अगर की जाए बरसात आने से पहले तो 200 से 250 किलोग्राम, और नेट रिटर्न उसी हिसाब से एक कटाई में 60,000, 2 कटाइयों में 1,20,000। और ये बहुत ही आसानी से बिकने वाली फसल है यहाँ पर। इससे मेंथॉल निकलता है, और मेंथॉल का उपयोग बहुत से स्वादगंध सामग्री में, दवाइयों में, यहाँ तक कि इस पे जो रिसर्च हुई है, एक रिसर्च के अनुसार उसको ये भी संभावना है कि कैंसर सेल को विभाजन को भी ये स्लो डाउन करता है। तो बहुत से इसके उपयोग होने वाले हैं। लेमन ग्रास इसमें सिट्रल होता है, इसका मेजर कंस्टिट्यूएंट। और खास बात इस फसल में यह है कि उथरीली जमीन, जहाँ पर कि साल्ट अफेक्टेड ये है, या जहाँ पर साल्ट अफेक्टेड सॉइल है, या यहाँ पर सिंचाई की कम सुविधा है, सैंडी सॉइल है, जानवरों की, जंगली जानवरों की, या ये पालतू जानवर जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वहां पर इस फसल को बोना चाहिए, क्योंकि इसको ये जानवर नुकसान बहुत कम पहुंचाते हैं, ना के बराबर। इसमें बहुत तेज गंध होती है पत्तियों में, और यही हाल मेंथा का भी है, जो मैंने पहले बताया। इस सुगंध फसलों में एक ये भी खास बात है कि जंगली जानवरों से भी बचाव हो रहा है। बहुत अच्छी डिमांड है इसकी, और अपने देश में इसका उत्पादन हो रहा है। और CSIR का जो एरोमा मिशन है, जिसको सिमैप ने और 5 और प्रयोगशालाओं ने पिछले 3 वर्षों में चलाया, इस एरिया को बहुतायत में बढ़ाया गया है। वेरी गुड क्रॉप फॉर अनइरिगेटेड एंड वेस्टलैंड्स। और वेस्टलैंड में, अनइरिगेटेड लैंड में ये करीब 100 से 150 किलो तेल देने की ये क्षमता रखता है, ये क्रॉप रखती है। और एक बार लगाने पर करीब 4 से 5 साल तक इसकी इकोनॉमिक यील्ड रहती है। लेमन ग्रास, सिम्बोपोगान फ्लेक्सुरस। सिम्बोपोगान की एक दूसरी स्पीसीज है मार्टिनी पामारोजा। लगभग उन्हीं परिस्थितियों में, उसी प्रकार के जलवायु की परिस्थितियों में इसकी भी खेती की जा सकती है। और इसका भी तेल जिरेनियल रिच होता है, जो कि सुगंध सामग्री में इस्तेमाल होता है, परफ्यूमरी में, कॉस्मेटिक्स में, अरोमा थेरेपी में। साल्ट अफेक्टेड और वेस्टलैंड के लिए ये भी बहुत ही मुफीद है। 1 हेक्टेयर क्रॉप गिव्स अबाउट 100 to 150 किलोग्राम ऑफ ऑयल। ये अंडर इरिगेटेड, बट अंडर अनइरिगेटेड एंड वेस्टलैंड्स this yield comes down to about 80 kilogram, but price of oil is high. It sells at about 2,000, sometimes 2,500, and even in a scarcity of this oil, it sells more than 2,500 a kg. So it's a very good crop, and this also provides protection from wild animals, domestic animals, and can be grown in poor soils. ये खस का पौधा है। खस में अभी जो पौधे देखे उनकी पत्तियों से तेल निकाला जाता है, लेकिन खस में आप जड़ों से तेल निकालते हैं। इनकी जड़ें खस से तेल निकालते हैं। तेल निकालने के बाद में आजकल कूलर
कि जो सीजन चल रहा है उसका कूलर में उस जड़ों को इस्तेमाल किया जाता है, खस के जड़ों का छप्पर भी बनाते हैं, पत्तियों का भी छप्पर बनाते हैं, तो तमाम इस्तेमाल है। और ये कम पानी वाले स्थानों पर, नदियों के किनारे, दलदली जगहों पर जहाँ पर बरसात में 1 से 1.5 महीने पानी भर जाता है, ये फसल बहुत अच्छी है। एक बार लगाने पर 12 से 15 महीने के बाद में इसमें जड़ें निकलती हैं और उन जड़ों को डिस्टिल करने पर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से करीब 20 से 25 किलोग्राम तेल निकलता है, जिसकी कीमत 15,000 रुपए किलो के आसपास है प्रति किलोग्राम। और उस हिसाब से इसका प्रॉफिट यहाँ दर्शाया गया है। खर्चा इसमें ज्यादा है। खर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसकी खुदाई में काफी खर्च आता है और खुदाई के लिए या तो मानव श्रम की जरूरत होती है, कुदाल से या फावड़े से खुदाई की जाती है, या फिर ट्रैक्टर से और दूसरे जो यंत्र बनाएंगे उनसे। और डिस्टिलेशन में भी दूसरी फसलों की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, करीब 16 घंटे से ज्यादा समय लगता है, जबकि दूसरी फसलें जो मैंने ऊपर बताई उसमें 3.5 से 4 घंटे डिस्टिलेशन का समय लगता है। तो ये तेल भी बहुमूल्य तेल है जो कि सुगंध सामग्रियों में इस्तेमाल होता है। ये तुलसी की फसल है, इंडियन बेसिल बोलते हैं इसको। इसकी 2 किस्में हैं, सिमसोमिया और विकार सुधा। इसमें मिथाइल चेविकॉल और लिनालोल होता है और परफ्यूमरी और फ्लेवर में इसका इस्तेमाल होता है बहुत। ये तुलसी है या कभी कभी इसको बबुई तुलसी भी बोलते हैं। इसकी भी खेती हो रही है बाराबंकी में, सीतापुर में, यहाँ पर रायबरेली में किसान इसकी खेती कर रहे हैं। और जब फसल, दूसरी फसलें जमीन में नहीं होती है, खाली होता है जब खेत, उनका जाड़ों को छोड़ करके कभी भी वर्ष भर में खेती की जा सकती है और करीब 90 दिनों में इससे पैदावार ली जा सकती है। शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है। ये जिरेनियम एक नया पौधा है और इसको सीमैप ने इंट्रोड्यूस किया है और एरोमा मिशन के अंतर्गत इसकी खेती का फैलाव काफी मात्रा में हुआ है। और इसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है, इसकी जो वैरायटी का नाम है सिंपल वन जिरेनियल होता है। इसमें अच्छी सुगंध होती है, गुलाब की तरीके से सुगंध होती है इसकी। तो जो हाई ग्रेड परफ्यूम्स है उनमें इनका इस्तेमाल होता है। 1 हेक्टेयर फसल से करीब 25 से 30 किलोग्राम तेल मिलता है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ ऑयल इन द लीव्स इज कंपैरेटिवली लेस, एक्सपेंडिचर इन 1 हेक्टेयर इज 80,000। ये मोटे मोटे आंकड़े हैं और नेट प्रॉफिट इज 1.5 लाख पर हेक्टेयर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक आपको अंदाज होना चाहिए कि इसमें इतना प्रॉफिट मिल सकता है इसकी खेती से। लेकिन ये प्रॉफिट यहीं तक सीमित नहीं है, इसको जब आगे चल करके आपको ये भी इसमें करना होगा कि इसकी डिस्टिलेशन भी करनी होगी, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग। इन सारी फसलों के लिए विभिन्न प्रकार के डिस्टिलेशन प्लांट्स बनाए गए। जैसे मैंने बताया कि ये भी एक ऑप्शन है। अब किसान दोनों काम करता है, वो खेती भी करेगा। कुछ किसान ऐसे होते हैं खेती करते हैं और मशीन भी लगा लेते हैं, और ये मशीनें सारी जो यहाँ दर्शाई गई हैं इस सीमैप के द्वारा डिजाइन की गई। और दूसरे कुछ लोग हैं जो केवल यही व्यवसाय करते हैं, यानी मशीनों को लगा लेते हैं, किसान वहां जाकर डिस्टिलेशन कराता है। जैसे कि दूसरे आजकल जो दूसरे तेल निकालने के या आटा पिसाने के संयंत्र हैं। तो ये अलग अलग ऑप्शन है। You can have both the things, cultivation and processing. You can have only processing. Cultivation is being done by other farmers in the area. तो ये दोनों प्रकार से काम चलता है। आपको दोनों प्रकार के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ये कुछ इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, जो कि माइल्ड स्टील की बने हुए ये यंत्र होते हैं। और इनका ये भट्टी है यहाँ पर, इसको देखें आप। और ये टैंक है, इसमें घास भरी जाती है। ये कोहोबेसन सिस्टम है, एंड दिस कोहोबेसन सिस्टम इज फिट फॉर फ्लोरल ऑयल, रोज के लिए, जिरेनियम के लिए, जिसमें कि मैंने बताया परसेंटेज ऑफ ऑयल इज लेस। बट पुदीना, वेटिवर, लेमन ग्रास और पामा रोजा के लिए बड़े किस्म की यूनिट, जो कि आप बाराबंकी सीतापुर में आप देखें। ये छोटी यूनिट है गुलाब जल के लिए। देखिए, महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये इसकी 25 से 30 और बल्कि 50 किलोग्राम पर बैच फ्लावर्स की कैपेसिटी है गुलाब जल बनाने के लिए। और ये भी बहुत सी मशीनें सीमैप में बनाई गई, जो कि महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में
दी गई और वो इससे रोजगार ले रहे हैं। आपको अभी भी अगर बाराबंकी में गांव का पता बताऊं और वहां आप जा करके देख सकते हैं कि ये एक महिला किस प्रकार से इस मशीन से वो तेल सॉरी वो बहुत अच्छी क्वालिटी का गुलाब जल बना करके और उसकी बॉटलिंग करके लोकल मार्केट में बेच रही। क्योंकि फूलों की हर वक्त खपत नहीं होती है। जैसे कि लॉकडाउन पीरियड में फूल बच गए, बहुत से धार्मिक स्थलों पर उनकी सप्लाई नहीं हुई, तो उन फूलों को उस महिला ने गुलाब जल बना करके रख लिया और उसकी बिक्री होगी, चाहे उसका शरबत में इस्तेमाल हो या खाद्य सामग्री के तरह। इसी प्रकार से ये एक मोबाइल डिस्टिलेशन मशीन है और ये भी सीमैप ने डिजाइन करी है, ट्रैक्टर ट्रॉली पर माउंटेड। हर्बल प्रोडक्ट्स एक अलग एरिया है। अभी तक जो मैंने आपको बताया कल्टीवेशन प्रोसेसिंग, बट जो कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग से जो तत्व निकला, जो ऑयल निकले, जो जड़ी बूटियां निकली, उस पर आधारित बहुत से हर्बल प्रोडक्ट्स बनाए गए। अगर आप सीमैप में कभी जाएं तो वहां पर आप देख सकते हैं हर्बल प्रोडक्ट डिवीजन में तमाम प्रकार के प्रोडक्ट्स, स्किन केयर से रिलेटेड, पेन रिलीवर से रिलेटेड, डिसइंफेक्टेंट्स, सैनिटाइजर्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, एंटी डायबिटिक फॉर्मुलेशन, मॉस्किटो रिपेलेंट, बहुत सारे नेचुरल फ्रेग्रेंसेस। अभी हाल में हैंड कूल प्लस करके सैनिटाइजर बनाया गया और इसकी टेक्नोलॉजी वहां के वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि करीब 4 कंपनियों को दी गई इसी दौरान करीब 1 महीने के दौरान, जो कि यहाँ इसका प्रोडक्शन शुरू कर दी। और ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर ये टेक्नोलॉजी यंग एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को उपलब्ध कराई जा रही है। वहाँ पर एक इंक्यूबेशन सेंटर भी है। अगर आपके पास मशीन लगाने का या बॉटलिंग की या मिक्सिंग की फैसिलिटी नहीं है, जिसमें कि 10 से 15 लाख या 20 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट होता है शुरुआत में, तो आप शुरुआत में ये मदद वहां से भी ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी के लिए आप वहां संपर्क कर सकते हैं। तो ये हर्बल प्रोडक्ट्स का एक अलग एरिया है और पिछले 20-25 वर्षों से सीमैप इसमें बहुत ही सीरियसली इसमें लगा हुआ है, ताकि इन पे आधारित जब प्रोडक्ट्स बनेंगे तो वहाँ गांव में, उन क्षेत्रों में जहाँ पर प्रोडक्ट्स बनेंगे, रॉ मटेरियल की भी डिमांड होगी और अतिरिक्त रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। ये एक नया एरिया है जो कि शुरू हुआ है, महक आस्था के फूलों की। बहुत से धार्मिक स्थलों हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, दूसरे भी धार्मिक स्थल है, वहाँ पर फूलों को चढ़ाया जाता है। उन फूलों को बाद में सड़क पर या तालाब में या पब्लिक प्लेसेस पे फेंक दिया जाता है सड़ने के लिए। इससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये फूल है, उनको सुखाने के बाद में प्रयोगशाला में ला करके वहाँ अगरबत्ती और कोन, सुगंधित कोन बनाने का प्रयास किया गया। प्रयास ही नहीं किया गया बल्कि इस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट किया गया और सक्षमा नाम की अगरबत्ती ये वहाँ बना करके महिलाएं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को इसको मुहैया कराया गया, जो कि धार्मिक स्थलों पर भी उसका उपयोग, जो वहाँ प्रसाद की दुकानें हैं या दूसरे स्थल है, तो वहां पर ही उसकी बिक्री और उपयोग हो रहा है। ये पूरा साइकिल हो गया। इस तरीके से जो ये कंसेप्ट है, तुझका तेरा तुझको अर्पण, आपके फूल आप ही के प्रसाद का पाउडर बना करके उपयोगी प्रोडक्ट बना और फिर वो मंदिर में पहुंच गया। बहुत से लोग इसको एज ए सोवेनियर ले जाते हैं और ये टेक्नोलॉजी अब प्रयोगशाला से निकलकर बहुत बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पर पहुंच गई है। जैसे शिरडी संस्थान, नासिक के पास वैष्णो देवी माँ मंदिर, और मिर्जापुर के पास जो धार्मिक स्थल है, तमाम जगहों पर यहाँ लोगों ने यहाँ की टेक्नोलॉजी से सीख करके और सीमैप के वैज्ञानिकों ने वहां जा करके उसका डिमॉन्स्ट्रेशन और ट्रेनिंग दिया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि स्थानीय महिलाओं को या मंदिर के पास रहने वाले गरीब परिवारों को मदद कर सकती है। और ट्रेनिंग के लिए सीमैप ने एक फैसिलिटी वहाँ क्रिएट करी है। चंद्रिका देवी मंदिर के पीछे छोटा सा हॉल बनाया गया है, जो कि 2011 में इसका इनॉग्रेशन हुआ जब मैं वहाँ पर था। अब वहाँ उसको और भी आगे बढ़ाने का प्लान चल रहा है और वहाँ पर भी समय समय पर ट्रेनिंग आयोजित की जाती है। ये कुछ फॉर्म बुलेटिन्स हैं, बुक्स हैं, जो विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, न केवल सीमैप से, बल्कि ये तो सीमैप के हैं औष ज्ञान्या, औष मतलब औषधि और सुगंध ज्ञान्या, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। इन पे जो मैंने यहाँ बताई है और उसके अतिरिक्त जो फसलें हैं उनका पूरा
विवरण दिया हुआ है। और कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो इंडिविजुअली लिखी गई है, जैसे ये पुस्तक है मेडिसिनल प्लांट वेल्थ ऑफ उत्तर प्रदेश, रिटन बाय डॉक्टर एस.सी. सिंह, ही इज एक्स स्टाफ मेंबर ऑफ सीमैप। इन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी, करीब 300 पौधों का विवरण है इसमें, जो कि उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, और बहुत अच्छा इसका पूरा विवरण है कि पौधे का नाम, उसका उपयोग, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आगे की संभावनाएं। और ये एक पुस्तक जो हिंदी में प्रकाशित की गई है, ये भी डॉक्टर एस.सी. सिंह, डॉक्टर बंसल और मैं स्वयं, ये लखनऊ जनपद की कुछ महत्वपूर्ण औषधीय वनस्पतियां। तो इस प्रकार की बहुत से पुस्तकें हैं, और ये पुस्तकें इस प्रकार की प्रकाशित की गई हैं, सीमैप, NBRI, ISBT, IIIM जम्मू, FFDC कन्नौज, Directorate of Medicinal and Aromatic Plant Research, Aromatic Plant Research, DMAPR, Agriculture Universities, National Medicinal Plant Boards, industries, NGOs and individuals, इन सबके पास कुछ न कुछ प्रकाशन सामग्री है, प्रकाशित सामग्री है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। जहां तक सीड्स और प्रोपोगल्स की बात है, वो भी इन्हीं संस्थाओं से आप प्राप्त कर सकते हैं, CSIR, सीमैप, NBRI, IHBT, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर, IIIM जम्मू, FFDC, फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज, ICR का इंस्टीट्यूट है जो मैंने बताया आपको, DMAPR आनंद गुजरात। ये सारे संस्थाएं हैं जहां से आप इंफॉर्मेशन, इन पौधों के बारे में, खेती के बारे में जानकारी, ट्रेनिंग, सीड्स और नर्सरी के लिए संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एक सलाह है जो नए लोग हैं जो इसमें एंटर करना चाहते हैं, ट्रेनिंग जरूर ले लें काम शुरू करने से पहले किसी भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से। यूज हाई क्वालिटी ऑफ प्लांटिंग मटेरियल फॉर कल्टीवेशन। खेती से पहले मार्केट को जरूर एसरटेन कर लें, देख लें डिमांड क्या है और उसमें क्या प्राइस आपको मिलने वाला है, क्या कोई तैयार है आपसे टाई अप करने के लिए, और कम से कम एरिया से शुरू करें, और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस गेन हो आप आगे बढ़ते रहें। अच्छा, अब मैं एक थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूंगा कि आप खेती कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन पौधों को आप अपने गृह वाटिका में भी लगाएं, जो कुछ खास पौधे हैं। और ये यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जिसमें एलोवेरा, कालमेघ, तुलसी, हल्दी, टर्मेरिक, अदरक, लेमन ग्रास, गुड़ची या गुड़च या गिलोय, अश्वगंधा, शतावरी, इनको जरूर आप लगाएं अपने घरों में, अपने लॉन में, पूजा करें। आप अपने ड्राइंग रूम में भी देखिए, ये गिलोय के पौधे हैं, गिलोय की डंठल है जो कटिंग्स है, वो एक ग्लास में पानी में यहाँ पर रखे गए हैं और फिर बाद में इनमें पोपल भी निकल रही है, तो सजावट की तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी सजावट की सजावट, औषध की औषध। एंड गिफ्ट प्लांट, हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि ये गिफ्ट प्लांट टू योर नियर एंड डियर वंस। ये एक हैबिट बनाइए, क्योंकि ये दवाइयाँ, ये जो औषधियाँ हैं, ये आपको रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। ये उन पौधों की एक चित्र दिए गए हैं, कालमेघ, गिलोय, गिलोय की जो लकड़ी है या उसके डंठल हैं, तुलसी की नर्सरी, ये एलोए के एक छोटा सा पौधा है, क्यारी है, आप क्यारी में भी लगा सकते हैं, आप गमलों में भी लगा सकते हैं। हल्दी, हल्दी का पौधा और हल्दी की गांठें, ये अदरक का पौधा, अदरक की गांठें, ये सत्तावर का पौधा और उसकी ताजा जड़ें, खुदा हुआ पौधा, ये सुगंधा, सुगंधा की जड़ें, लेमन ग्रास। ये इन पौधों को तो आपको लगाना ही चाहिए। और ये दृश्य है अंत में, ये अरोमा मिशन के अंतर्गत IIIM जम्मू ने, जो भदरवा एक जगह है, डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में, ये मैंने उनकी FB पोस्ट से कॉपी किया है और उनको मैंने यहाँ पर एक्नॉलेज भी किया है। लेवेंडर, इस लेवेंडर को भारत में लाने का श्रेय सीमैप हो जाता है, और पहले इसकी खेती बुनेरा फार्म पे कश्मीर वैली में की जाती थी। वहां पर जब खेती में डिस्टर्बेंस हुआ तो अब इसका फैलाव दूसरे क्षेत्रों में हो रहा है। एक बहुत अच्छी फसल है ये लेवेंडर, जिसको कि हम इंपोर्ट करते हैं। इसका अगर उत्पादन बढ़ेगा तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे। बहुत से ऑयल्स हैं जिनका हम इंपोर्ट करते हैं, उनमें लेवेंडर भी एक है। तो ये ठंडे स्थानों पर
जैसे कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, या नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ ऐसे इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश के ऐसे इलाके हैं, यहाँ तक उत्तराखंड के कुछ ऐसे इलाके हैं जिन पे ऐसी फसलों की खेती हो सकती है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ CSIR सिनैप का, जिनका कि ज्ञान, जिनका कि स्लाइड्स यूज की, और सभी साथियों का और आयोजकों का फिर एक बार MUIT और जितने भी प्रतिभागी जो इस वेबिनार को आयोजित किया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। So, thank you, sir, for nice and informative session. I think हमने तो सभी लोग, हम सभी जितने participant, including me, we are afraid for the corona. So आपने तो हम लोगों को एक future hope provide कर दी. Definitely people will get benefited with this. So thank you, sir. Thank you. Thank you. And questions को आप लोग participant chat box में डाल सकते हैं, और अगर आप लाइव सर से interact करना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। This is time for your interaction. Hello, sir. Sir. Yes. Good afternoon, sir. Sir, जेरेनियम क्रॉप को किस स्टेट में ग्रोन करते हैं? किस स्टेट में? जी सर। ये अपने उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, हो रहा है जी। और यहाँ बाराबंकी में, बदायूं में, कई से जिलों में बहुत से किसानों के यहाँ इसका डेमोन्स्ट्रेशन लगवाया गया है। यस सर। तो हाँ, तो इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। पहले ऐसी मान्यता थी कि हम केवल ठंडक में वाले प्रदेशों में ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वैरायटी डेवलप किया है कि जो सब ट्रॉपिकल एरियाज इसकी खेती हो सकती है। और सर एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप उत्तर प्रदेश में सर, जी बोलिए सर। मैं लखनऊ से ही एक सवाल जानना चाहता हूँ, योगेंद्र कुमार सिंह। ये हाँ, सर जो उस रीली मिट्टी है, क्या सर इसमें मेडिसिनल क्रॉप की खेती कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो कौन कौन सी से ले सकते हैं? जी, उस रीली के लिए ये अश्वगंधा रिकमेंड किया जाता है। अश्वगंधा कम उपजाऊ उस मिट्टी में, और देखिए ये मतलब ये अपने हिसाब से वाइल्ड ग्रो करता था, बहुत ही इसके लिए उपजाऊ मिट्टी नहीं चाहिए। अब उसके लिए इसका pH के मान कितना है ये जरा पता करना पड़ेगा। अदरवाइज pH 9 तक, 9 साढ़े 9 तक आपकी एरोमेटिक ग्रासेस जो है, लेमन ग्रास है, रामा रोजा है, ये तो बहुत ही सफलतापूर्वक होते हैं। लेकिन एक बार अश्वगंधा का सीड क्या सर सीमैप से प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, अश्वगंधा का सीड सीमैप से ले सकते हैं। अगर सीमैप में नहीं है तो आप किसानों जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनसे भी आपको संपर्क कराया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। हेलो सर, मेरा नाम नितेश कुमार है सर। लेमन ग्रास जो होती है, हेलो सर, बोलिए लेमन ग्रास जो होती है तो बताइए सर। वो उसके लिए सर सॉइल सर फर्टाइल होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए सर? देखिए, फर्टाइल सॉइल है, बहुत अच्छी बात है, और उसमें जैसा बताया है कि अगर अच्छी सॉइल है, पानी की सुविधा है, तो 200 से 250 किलोग्राम तेल मिलेगा। अगर अनफर्टाइल उसमें सिंचाई सुविधा, इसका कल्टीवेशन कैसे करेंगे सर? यानी करीब 100 से 100। जी सर, इसका कल्टीवेशन कैसे होगा सर? हाँ, इसका लेमन ग्रास जी ये इसका वेजिटेटिवली प्रोपगेशन होता है। जो लेमन ग्रास के जो नीचे के कल्ले होते हैं उनको काट करके लगाया जाता है,
और 1 हेक्टेयर में करीब 45 से 50 हजार देते हैं। तो बेहतर रहता है कि तो करीब 2 से 3 हजार करके स्टार्ट करके लगाने चाहिए बरसात में, जून जुलाई में जब बरसात हो, और 10 महीने में 12 महीने में करीब 20 से 25 गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं और फिर उनको प्लांट किए जाते हैं जमीन में। तो कल्टीवेशन इज थ्रू स्लिप्स, उनको स्लिप्स बोलते हैं, कल्ले बोलते हैं। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो चैट बॉक्स में, हाँ उनको चैट बॉक्स में डाल दे, आप उनको इनके क्वेश्चन मेल कर देंगे तो हम उनके जवाब दे देंगे। ठीक है, चैट बॉक्स के साथ अपना ईमेल आईडी भी सेंड कर दीजिए ताकि हाँ सर को मिल जाए और आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको ईमेल। मधु जी, एक अभी प्रश्न आया कि उत्तर प्रदेश में इनको कहाँ सेल कर सकते हैं, इनके सेल्स का जो पता है। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही? आ रही है सर। हाँ, तो सुगंधित तेलों को, जड़ी बूटियों को सेल करने के लिए ये जो मैंने किताबें पहले दिखाई थी औष ज्ञानिया, इसमें कुछ खरीदारों के पते दिए गए हैं, लखनऊ के और दूसरे प्रदेशों के भी। वो पुस्तक हमारे ख्याल में 100 रुपया या उसके आसपास कुछ मूल्य पर सीमैट पे मिलती है, वहां से मंगा लें, तो उनसे संपर्क कर लें। कोई कठिनाई हो तो हमें मेल करें, हमें उनको पते भेज दूंगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस के लिए वो बाद में हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी दे दीजिए। Which medicinal plants are suitable in बुंदेलखंड रीजन, ये गिरीश चंद्रा ने पूछा है। इनको वहां पर चूंकि पानी की कमी है, इसलिए लेमन ग्रास की खेती सीमैप करा रहा है एक सक्सेसफुली, पामारोजा, और ये वहां की अच्छी फसलें हैं, इनकी मार्केट भी अच्छी है। लेमन ग्रास सीमैप से मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। नीतीश कुमार जी ने पूछा है। ठीक है, उसके बाद हाउ टू कल्टीवेट मशरूम। मशरूम के लिए भाई देखिए, मुझको इसका पूरा ज्ञान नहीं है। आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में एक आरफ्रेक संस्था है उद्यान भवन के पास, रीजनल फूड रिसर्च सेंटर, वहां पर डॉक्टर SK चौहान है और वो जुलाई में एक ट्रेनिंग सेशन करना चाहते हैं मशरूम कल्टीवेशन पर। अपना नाम वहां लिखा दें और सीख लें। विवेक चौरसिया जी। ओके, हाँ, अंकित तिवारी ने पूछा है कि which type of soil suitable for vetiver। वेटिवर के लिए आपकी बलुई दोमट है बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी जड़ों के लिए खेती की जाती है और इनकी जड़ों को खोद कर निकालने में आसानी रहती है। डिटेल ऑफ एग्रो टेक्नोलॉजी के लिए आप उस पुस्तिका को जरूर देखें जो सीमैप में मिलती है, और ज्ञानिया, और ट्रेनिंग जरूर करें खेती के पहले, तो आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मधु जी, मीटिंग को समाप्त किया जाए। हाँ, मैं जितने पार्टिसिपेंट से अनुरोध करता हूँ कि उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, हम उनको एक फीडबैक लिंक देंगे, वो उनको फीडबैक लिंक भरने के बाद उनका सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाएगा। ठीक, इतना भी मेरा पार्टिसिपेट से अनुरोध है कि अपना फीडबैक जल्दी उनको लिंक दे दिया जाएगा, जिससे उनको ये सर्टिफिकेट बहुत जल्दी हम प्रोवाइड करा देंगे। और थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी है हम लोगों को, और कि हम अपना कोई भी जो मेडिसिन प्लांट है वो कैसे लगा सकते हैं और कैसे उससे बेनिफिट पा सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर मधुलिका जी, डॉक्टर मधु श्रीवास्तव एंड जो दूसरे स्टाफ है, सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच।